Yes, we have studied that bryophytes, they are of two types, liverworts and mosses. So yesterday I have discussed the life cycle of liverwort, students. So as you know that what is the basic difference between liverwort and mosses? So basic difference is that the liverworts, in the liverworts, the root-like, leaf-like and stem-like structures, all of these, they are well developed, well differentiated, you can say. Whereas if we consider the mosses, so mosses too have, they have also differentiated kind of thallus, but here the root-like and leaf-like and stem-like structures, they are not very much visible. ठीक है, तो बस हम मैंने आपको कल लीवर वॉट्स का और जनरल जो लाइफ स्पैन जो है वो कैसे चलता है ब्रायोफाइट का, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. तो देखिए उसमें अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है तो उसके अंदर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट, that is actually the gametophytic phase. Okay, student, and the gametophytic phase is a haploid type of phase. Means the haploid phase means they have a single set of chromosomes in their main plant body. Okay, bete. Then what you see as it is the gametophytic phase. So in the gametophytic phase, wait a moment. Okay, bete, what I am saying that the plant body of a bryophyte, it is gametophytic in nature, and gametophytic phase is actually that phase which is haploid. Means the main plant body of the bryophyte, it consists of single set of chromosomes. Okay, but as the name itself indicates that it is a gametophytic phase. So gametophytic phase means at this phase the gamete formation should be there. ठीक है, तो मैंने वही बताया था आपको कि in case of liverworts, ठीक है, liverworts के केस में when they are in their gametophytic phase, then gamete formation is there, and for this purpose, ठीक है, different type of fruiting bodies they develop. So one special thing is either the fruiting bodies they develop on different thallus, ठीक है, or they may develop on the same thallus. So you know, you also know the name of the fruiting bodies. So here the fruiting body that is related with male, it is anthridiophore, and that is related with female, it is archegoniophore. ठीक बेटे, तो यहाँ तो anthridiophore and archegoniophore, both of them they develop on the same thallus or they develop on the different thallus. तो देखो anthridiophore जो है, suppose it is develop on one thallus and archegoniophore is develop on another thallus. So you know that this anthridiophore, which is a fruiting body of the male, it is supposed to have anthridium. ठीक है बेटे, this anthridium is male sex organ, and this archegoniophore, which is the fruiting body of the female, it has archegonia, which is the female sex organ. And inside the anthridium, what is going to develop? So inside the anthridium, the male gametes are developed, which are known as anthrozoids. And inside the archegonium, which is actually a flask-shaped structure, so what is going to be developed? The egg cell is going to be developed. Okay, then what happened? As you know that these bryophytes, they generally have to go into water, or they generally use water for their reproduction. So when these anthrozoids, they develop in the anthridium, okay, wind blows, then these anthrozoids, which are the male gametes, they come out from the anthridium, they fall on the surface of water, they swim through the water currents, and finally they reaches the archegonia, and they enter into the archegonia, they fuse with the egg cell. Then you know that when the anthrozoid it fuse with the egg cell, then both have haploid number of chromosome, and the zygote which later develops, it is a diploid kind of structure. Okay, Mate, what is the special thing that I have already explained, that here the zygote is not undergoing meiosis. Okay, instead of that, the zygote develops into a diploid structure, and that is known as sporophyte. So this diploid structure sporophyte, it is actually attached with the gametophyte. ठीक बेटे, ये gametophyte के साथ ही अटैच होता है. तो gametophyte के साथ ये तब तक अटैच रहता है जब तक कि जो zygote का न्यूक्लियस है वो sporophyte के कैप्सूल में नहीं चला जाता और उसमें meiosis नहीं होती है. ठीक, then I have explained you that sporophyte is a diploid structure. It is attached with the gametophyte with a foot-like structure.
and that is the bottom part of that sporophyte, which is known as foot. Then I say from the foot a stalk-like structure arises, and that stalk-like structure is known as seta, and the tip of the seta is swollen and it develops into a capsule-like structure. ओके बेटे, अब ये स्पोरोफाइट जो है वो जाइगोट से ही तो डेवलप हुआ था ना, तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो स्पोरोफाइट के कैप्सूल में चला जाता है and it stay in the capsule for some time. Then what happen? Meiosis takes place. उसके बाद meiosis होती है कैप्सूल में जो जाइगोट न्यूक्लियस है उसमें, and खूब सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनती हैं, and when the wind blows and the wall of the capsule it get mature, then what happen? These haploid spores, they comes out and they fall on a suitable substratum. If the substratum is containing enough amount of moisture, water or whatever conditions that are necessary for germination, then these haploid spores they germinate. और जैसे ही ये haploid spore germinate करती हैं तो ये फिर से ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी बना देती हैं. And you know that the main plant body of the bryophyte, and here I am talking about liverwort, तो main plant body bryophyte की जो dominant है वो gametophytic ही है. तो बस आप इतना याद रखेंगे कि in case of bryophytes, चाहे वो liverwort है चाहे वो mosses है, पर दोनों में स्पेशल थिंग ये है कि जो उसकी मेन प्लांट बॉडी आपको सबसे पहले नजर आती है वो उसकी गैमेटोफिटिक फेस को दर्शाती है, और हमें स्पोरोफिटिक फेस जो है वो सिर्फ जाइगोट के टाइम पे नजर आता है जब जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होता है. ओके बेटे, एक चीज जो आपने और याद रखनी है वो ये है कि स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है, दिस स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट. फुट इज द बॉटम पार्ट, देन वी हैव सीटा which is a bridge like structure connecting the foot with the capsule, and the topmost part is known as capsule. और एक और चीज याद रखेंगे कि हमेशा meiosis कैप्सूल में प्रेजेंट जाइगोट न्यूक्लियस में होगी, haploid spores बनेंगे, and when these haploid spores they germinate, then what happen? They form the main plant body which is again a gametophyte. तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि गैमेटोफिटिक फेज था, उसके बाद फिर स्पोरोफिटिक फेस आया, और फिर स्पोरोफिटिक फेस में मियोसिस हुई, और मियोसिस होके फिर से गैमेटोफिटिक फेस आ गया. तो ज्यादा टाइम के लिए आपको कौन सा फेस नजर आया? गैमेटोफिटिक फेस. तो दैट्स व्हाई जो ब्रायोफाइट है उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है. ठीक है बेटे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होता है जिसमें हैप्लॉइड फेस डोमिनेट होता है, और स्पोरोफिटिक फेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सी I want to discuss with you asexual reproduction कैसे होता है liverworts में. Okay, so asexual reproduction takes place by the method of fragmentation. So what happened by the method of fragmentation? So it is a simple method that the thallus it breaks and forms so many fragments, and all of these fragments they are able to produce the gametophytic plant body of the liverwort. Okay student, another method under asexual reproduction is that gamma cups. मैंने आपको बताया था कि उसका जो थैलस होता है उस पे गैमा कप्स यानी कप लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो उसके थैलस पे डेवलप होते हैं, and these cup like structures they have asexual buds that are present inside them, and these asexual buds are known as gametes and the cups are known as gamma cups. So when the wind blow, then what happen? The gametes which are present in these gamma cup they comes out. तो जैसे हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट किए थे ना वैसे ही गैमे भी जर्मिनेट करेंगे, एंड व्हेन दे जर्मिनेट, तो जर्मिनेट होने के बाद वो फिर से ब्रायोफाइट की न्यू प्लांट बॉडी जो है उसको फॉर्म कर देती हैं. ठीक है बेटे, क्योंकि हम यहाँ लिवरवॉर्ट की बात कर रही हैं, तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ लिवरवॉर्ट्स. आई हैव आल्सो शोन यू वन पिक्चर देयर. सी दिस पिक्चर, दिस इज द enlarged व्यू ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, ये मॉसेस के केस में मैंने आपको दिखाया है, लिवरवॉर्ट में भी सेम इसी तरह का जो है स्पोरोफाइट डेवलप होता है. तो सी यहाँ पे देखिए आपको ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये इसके गैमेटोफाइट को दर्शा रही हैं, और उसके बाद देखिए फिर आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो गैमेटोफिटिक फेस है उसके साथ ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो अटैच नजर आ रहा है. तो एट व्हाट पॉइंट दे अटैच्ड विद दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, that is known as foot. तो यहाँ पे foot आपको नजर नहीं आ रहा, पर जहाँ पे भी ये सीधा अटैच है ना इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से वही foot है. Okay, and this is a bridge like structure. This is a stalk like structure which is known as seta, and the topmost part it is swollen in nature and it is known as a capsule.
So 3 parts of sporophyte are there: capsule, seta and foot. Foot is that part by which the sporophyte it gets attached with the gametophyte. ओके बेटे, तो ये गैमेटोफाइट के बारे में उसने बताया हुआ है कि गैमेटोफाइट हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज राइजोइड्स एंड दिस इज द मेन एक्सिस ऑफ द गैमेटोफाइट, और उसी में से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। तो मेन एक्सिस जो है उसको आप स्टेम भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इन इट। एंड ऑन द थैलस, if the leafy part is there and that leafy part contains veins and veinlets, then you can say that it is a leaf-like structure. So all the 3 type of structures are there: leaf-like, root-like, and stem-like in the gametophytic plant body of bryophyte. So proceeding with the mosses, I am here going to tell you more about mosses. That mosses, they are also well differentiated type of thallus, but sometimes the thalloid part is more. Okay, but and there is one very different kind of stages that are found in case of mosses. तो उसमें देखो बेटे, जो कहते हैं कि लाइफ साइकिल जो है मॉसेस का, उसमें 2 स्टेजेस आती है। ठीक है, कल भी बताया था। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द प्रोटोनीमा स्टेज। सो हाउ द मॉस इट लुक लाइक इन द प्रोटोनीमा स्टेज, तो आपने याद रखना है कि अगर आप लीवरवॉर्ट का लाइफ साइकिल रिकॉल करेंगे देन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि हुआ क्या था कि when the haploid spore germinate then they form the gametophytic plant body of the bryophyte। ऐसे ही हुआ था ना। तो उसी तरह से मॉसेस जो है उनकी लाइफ साइकिल की शुरुआत भी कैसे होती है, जब हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं जो कैप्सूल में से आए हैं वो जर्मिनेट करते हैं, तो फिर मॉस जो है उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो चाहे लिवरवॉर्ट है चाहे मॉसेस हैं, दोनों का ही लाइफ साइकिल जो है उसमें हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट वन। So here I am talking that when you see the moss plant, that it is actually the gametophytic phase of that moss plant that is visible to you. And how many stages are there in this gametophytic phase? So 2 stages are there. Okay, first stage is known as the protonema stage and second stage is known as the leafy stage. अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटोनीमा स्टेज के बारे में बता रही हूँ कि प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो एक्चुअली दैट स्टेज है which actually develops when the haploid spore germinate। ठीक है, जो कैप्सूल में से haploid spores आए थे जब वो germinate किए, तो पहली स्टेज जो हमें नजर आई गैमेटोफाइट की, that is known as protonema stage। and how the moss it look like in the protonema stage, तो कहते हैं कि उस टाइम जो मॉस की प्रोटोनीमा स्टेज होती है ना, उसमें वो एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको नजर आता है। क्रीपिंग का मतलब है कि सॉइल की सरफेस के साथ साथ ही वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पैरेलल ग्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टल मैनर पे, और ग्रीन इन कलर होता है एंड इट आल्सो हैव सो मेनी ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस भी होती हैं और फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिलामेंटियस स्टेज होती है ये उसकी। तो बस आप इतना याद रखेंगे कि इट इज अ ग्रीन ब्रांच्ड क्रीपिंग स्ट्रक्चर व्हिच रन्स पैरेलल टू द सॉइल सरफेस। ओके बेटे, तो देखो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है वो क्रीपिंग फॉर्म में ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। But the second stage is known as the leafy stage। तो leafy stage में क्या होता है कि leafy stage जो है उसके अंदर कहते हैं कि leafy stage जो है उसमें जो आपकी क्रीपिंग स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा था जो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टल, उसी में से कुछ ब्रांचेस जो है इट ग्रोज इन अ वर्टिकल फैशन। ठीक है, वर्टिकल फैशन में ग्रो करने लग जाती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एंड दे बियर सो मेनी ब्रांचेस। ठीक है, उसमें और सारा ब्रांचेस आ जाती हैं और उसपे काफी सारे लीव्स आ जाते हैं। ठीक बेटे, तो ये जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं, ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि किसी ब्रांच पे काफी सारे लीव्स लगे हुए हैं और अगर उसकी ब्रांच के टिप की तरफ आप जाओगे तो वहां पर जो है यहाँ पे मॉसेस के केस में क्या डेवलप होंगे, उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखेंगे कि सेकंड स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है और लीफी स्टेज की शुरुआत कब होती है, when some of the branches from the creeping structure they grows in upward direction, in vertical direction, and they later develops into so many branches and they bear the leaves। ठीक है, so if you imagine one branch having so many leaves and at the tip of that branch what is going to be developed, the sex organs are going to be developed। तो और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी यही है कि जो इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं as similar to the you can say this liverwort, again the sex organs they are the amphibium and the archegonium।
ठीक बेटे। एक और चीज उसने बताई हुई है कि ये सॉइल के साथ कैसे अटैच्ड होता है, तो मॉसेस भी सॉइल के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। सो व्हाट आर दीज राइजोइड्स? एक्चुअली दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स टू बाइंड द मॉस विद द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, आप इतना याद रखिए कि जो ब्रांचेस उसकी वर्टिकल फैशन में डेवलप हुई हैं उसकी सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे व्हाट इज गोइंग टू बी डेवलप, सेक्स ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी डेवलप। ठीक है, तो मॉसेस में तीनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। देखो, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपली टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होना है, फ्रेगमेंटेशन होनी है। जो भी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आपको नजर आ रही है या थैलस आपको नजर आ रहा है, उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे एंड ईच फ्रेगमेंट इज एबल टू प्रोड्यूस द एंटायर बॉडी ऑफ द मॉस। ठीक है, यहाँ फिर कहते हैं कि बडिंग होती है। तो देखो, आपको तय था कि पहली जो स्टेज होती है जिसको हम प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं वो स्पोर से डेवलप होती है। ठीक बेटे, और जो कहते हैं कि ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है, ठीक है, उसी में आगे जाकर जो है बड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है डेवलप होती हैं। और ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है, ये भी क्या करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये बर्ड्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं एंड जब वो जर्मिनेट करती हैं तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस द मॉस बॉडी। If we are talking about sexual reproduction, I have already explained you that the sex organs, they are going to develop at the tips of the branches of the leafy stage. Okay, you know that the leafy stage, the branches they grows in upward direction or in vertical fashion. तो हर एक ब्रांच के टिप पर क्या लगेंगे, सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ब्रांच पे डेवलप हो सकता है, तो इट इज एम्फीडियम, and female sex organ it develops on the other branch, so it is known as archegonium. So always remember, archegonium is a flask shaped structure. Archegonium कैसा structure है, flask shaped structure है। and you are also knowing that inside the archegonium what is present, an egg cell is present। ठीक है, बाकी स्टोरी वही है कि when the anthrozoids or male gametes they are developed in the amphibium, and as soon as the wind blows, these anthrozoids they comes out and they fall on the other branch which contains the archegonium. They enter into the flask shaped structure which is archegonium, okay, passes through its neck and finally they comes in contact with the egg cell. So these anthrozoids they fuse with the egg cell, okay, and zygote is formed. Now again you know that there is no meiosis in the zygote. Now what is the zygote doing right now? So this zygote later develops into the sporophyte, और sporophyte जो है उसमें वही तीन स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, fruit, seta and capsule. And the nucleus of the zygote, which is a diploid nucleus, it goes into the capsule part of the sporophyte, and later on meiosis takes place in the capsule। ठीक है, जहां पे वो जाइगोट न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें मियोसिस हो जाएगी एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। देन दिस हैप्लॉइड स्पोर्स दे कम्स फ्रॉम द कैप्सूल, ठीक, एंड एज सून एज दे फॉल ऑन द मॉइस्चर रिच सबस्ट्रेटम दे जर्मिनेट एंड हियर दे फॉर्म द बॉडी ऑफ द मॉस। ठीक है, फिर बाकी सारी की सारी वही चीज रिपीट होनी है कि मॉसेस जो है जब ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेज आपको मॉस की नजर आएगी जिसको आप प्राइमरी प्रोटोनेमा कहती हैं। और प्राइमरी प्रोटोनेमा जो है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, सॉइल सरफेस के पैरेलल ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टल फैशन में एंड देन इट डेवलप्स इनटू लीफी स्टेज। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा जो है उसी की ब्रांचेस पे लेटरल बड्स डेवलप होंगी और उन बड्स में से न्यू ब्रांचेस निकलेंगी इन वर्टिकल फैशन। एंड ये जो न्यू स्टेज है, न्यू जो ब्रांचेस निकली हैं, दे लेटर bear so many leaves, so this is known as the leafy stage। Then you know that in the leafy stage on these branches at their tips sex organs are develop, antheridium, archegonium, then inside the antheridium anthrozoids are formed and inside the archegonium egg cell is formed, then one anthrozoid fuse with the egg cell to form zygote, then again zygote develops into sporophyte। The nucleus of the zygote it goes into the capsule part of the sporophyte, meiosis takes place and haploid spores are formed। Again the haploid spore germinate and form the gametophytic plant body of the moss। ठीक बेटे, तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी जिस तरह का स्पोरोफाइट डेवलप होता है यहाँ पे भी वही स्पोरोफाइट डेवलप होता है। वहां भी मियोसिस कैप्सूल के अंदर ही हुई थी स्पोरोफाइट की, यहाँ भी मियोसिस कैप्सूल के अंदर ही हुई है, वहां भी फ्लॉइड स्पोर बने थे।
यहाँ पे भी हैप्लॉइड स्पोर बने हैं। पर अगर थैलस जो है वो लिवरवॉर्ट का है तो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके लिवरवॉर्ट का थैलस बनाएंगे, और अगर थैलस जो है वो मॉस का है तो उस समय हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके मॉसिस का जो है क्या बनाएंगे, थैलस बनाएंगे। ठीक बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखो थोड़ा सा मैंने और पॉइंट्स यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, देयर इज अ स्मॉल पैराग्राफ दैट इज गिवन इन योर बुक, यू गो थ्रू दैट। ठीक बेटे, तो मॉसिस जो है मैंने आपको कहा था कि दिस मॉसिस दे आर जनरली यूज्ड बाय हर्बेशियस मैमल्स। ठीक है, दोस मैमल्स which generally feeds on herbs and some of the birds also and some small animals also, they generally take mosses as their food. ये mosses जो है हमको अपने फूड की फॉर्म में लेती हैं। And second is there is a special type of moss and that is known as sphagnum. तो मैंने आपको बताया था कि where this sphagnum moss is generally growing, we are expected to get reserves of a special coal which is known as peat. ठीक है, तो जहाँ पे भी स्पिग्नम मॉस ग्रो कर रहा होता है ना अर्थ की सरफेस पे, अगर हम वहां से डिगिंग करते हैं तो उसके बाद हमें वहां से जो है पीट जो कोल है वो मिलने की गुंजाइश। And another very important thing is that this sphagnum has a property of act as hydrocolloid. So what are these hydrocolloids actually? So these hydrocolloids, they are such a type of substances which can hold water for a longer time. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम स्पिग्नम जो मॉस है उसको जो है पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं। तो जब आपने कहीं पे फ्रूट्स जो है भेजने हैं किसी दूसरे कंट्री में, और यू हैव टू सेंड वेजिटेबल्स और सम ऑफ द सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि जल्दी स्पॉइल हो सकती हैं, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे कार्टन्स हैं उसकी आउटर सरफेस पे उसके अंदर की तरफ हम क्या करते हैं, मॉस ग्रासेस जो है उनको बिछा देते हैं गीला करके, और उसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो रखते हैं। तो ये काफी मंथ तक जो है खराब नहीं होती, बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लाइड टू गेट absorb more and more moisture and do not let it escape. Okay student, another very important thing is what is general saying about lichens, that lichens are the pioneer species which comes on the surface of earth, primitive earth, ठीक है, on bare rocks. तो ये भी माना जाता है कि सिर्फ लाइकन ही पायोनियर स्पीशीज नहीं थे, लाइकन्स के साथ जो मॉसेस हैं they also act as the pioneer species. They are the first beginners who first grow on the bare rocks that are present on the surface of this primitive earth, and later what they do, they produce specific type of acids, and because of these acids the weathering of the bigger rocks takes place and soil formation it happens on the surface of primitive earth, and which later act as a substratum for the growth of further vegetation. Okay student, the next is कि मॉसेस जो है वो रॉक्स को डिकम्पोज करने में इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा है लाइकन्स के साथ। फिर आपको बताया था कि जनरली दिस मॉसेस दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, देखिए नीचे पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जब मॉसेस जो है वो ग्रो करते हैं तो सॉइल की सरफेस को अच्छे से कवर कर लेती हैं, एंड आपको ऐसे लगता है कि डेंस मैट जो है वो सॉइल की सरफेस पे बिछा हुआ है। तो उसकी वजह से व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल, तो ये सॉइल इरोजन नहीं होने देते, दे डू नॉट लेट द फ्लो ऑफ द फ्री सॉइल। ठीक है, तो दे प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। इस तरह से जो टॉप मोस्ट सॉइल है, ठीक है, टॉप लेयर होती है सॉइल की विच इज अ फर्टाइल वन, वो इनकी वजह से बनी रहती है, और जो पर्टिकुलर सॉइल है वो बैरन सॉइल में कन्वर्ट नहीं होती। ओके बेटे, बैरन सॉइल वो होती है जिसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करती। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गई हैं। Yes, बेटे, this is clear to all of you? हाँ जी, speak up. Yes, बेटे, किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट प्लान पे जाऊंगी वो इससे थोड़े से एडवांस होंगे, तो प्रीवियस वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है? यस मैम। यस मैम। बेटा कोई बात नहीं, आज सभी स्टूडेंट एक बार गो थ्रू करेंगे ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल से, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट, ठीक है, तो टुमारो जब मैं क्लास शुरू करूंगी आप मुझे बताएंगे
एंड हम फिर से उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक स्टूडेंट को भी अगर कुछ पता नहीं लगता है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इवन 100 टाइम्स फॉर दैट स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज माय ड्यूटी दैट थिंग्स शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं सिर्फ आज आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा कहूंगी क्योंकि उनका लाइफ साइकिल जो है वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके बेटे, तो whenever we use the term pteridophytes, so what is actually coming in your mind that these pteridophytes are a decorative kind of plants, ठीक है, those plants which have beautiful leaves। हम ये नहीं कहते कि टेरिडोफाइट्स में कोई बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। टेरिडोफाइट्स बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं अपने ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से। तो समटाइम्स व्हेन यू ग्रो such kind of decorative plants in your pots, ठीक है, you always admire them for their beautiful leaves। तो उनके leaves के different colors हो सकती हैं, characteristic shapes हो सकती हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें mainly two type of plants आ जाती हैं, these may be the horse tails और these may be the ferns, ठीक है बेटे। तो ferns are chiefly known as the decorative plants। So here I am showing you the picture of pteridophytes। तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, they have beautiful type of leaves having characteristic shapes and designs। And another very important thing in the second picture is, तो अगर आप इन लीव्स की बैक साइड देखोगे ना तो उसकी बैक साइड पे इस तरह के आपको छोटे छोटे से डॉट्स नजर आते हैं। तो बेटे these small dots which is generally visible on the, you can say, back side of the leaf, they have special type of structures which are known as सोराई, ठीक है, SORI सोराई, या फिर सिंगुलर में हम उसको बोलेंगे SORUS सोरस, ठीक है। तो ये सोरस या सोराई क्या होते हैं, ये सोरस या सोराई जो हैं they are the special type of structures which contains the spores of these pteridophytes। तो ये सोराई जो है इसमें टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स होती हैं। when the wind blow, these spores they comes out from this you can say sorus, and when they find favorable condition in their habitat they germinate, और germinate करने के बाद जो है ये सोराई जो होते हैं उसके जो स्पोर्स हैं ये फिर से न्यू टेरिडोफाइट जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने लार्ज व्यू आपको दिखाया है, इस तरह के छोटे छोटे से डॉट्स आपको नजर आएंगे जिनको सोराई कहती हैं, और इसके अंदर होते हैं खूब सारे हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके बेटे, तो थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दीस pteridophytes? तो मोस्टली मोस्ट ऑफ दीस pteridophytes they contain such type of members which have a medical importance, ठीक है। कुछ इस तरह के प्लांट इसके अंदर आ जाती हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मेडिकल फील्ड में इनका काफी इंपॉर्टेंस है, हमसे मेडिसिन तैयार की जाती है, ठीक है। सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो है वो सॉइल बाइंडर्स है, ये माना जाता है कि इफ यू ग्रो दिस टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ऑन सॉइल, तो ये क्या करते हैं सॉइल को बांध के रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। And another some of the members they are growing as ornamental plant, तो घर में साज सजावट के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। Another very important thing that is related with these pteridophytes is कि they are the first terrestrial plant, ये पहले ऐसे लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट हैं which possess vascular bundles, ठीक है, जिनमें पहली बार वेस्कुलर बंडल्स देखे गए, जाइलम एंड फ्लोएम देखे गए। तो अभी तक आप ये याद रखेंगे कि ना तो एल्किस के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम थे, ना ही ब्रायोफाइट्स में थे। तो वेस्कुलर प्लांट्स की शुरुआत कहाँ से होती है, टेरिडोफाइट से होती है। सो दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स which are known as xylem and phloem, you can say vascular tissue। So you know that what is the function of xylem? Xylem is mainly concerned with the conduction of water and minerals, and phloem is related with the translocation of the food, ठीक है। phloem जो है वो food जो है उसके transport में involved होता है। Okay, but regarding their habitat, तो these pteridophytes they do not require much amount of sunlight, इनको बहुत ज्यादा sunlight अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो they generally prefer to grow in cool, damp and shady places, ये हमेशा ठंडी जगह पे ग्रो करना पसंद करती हैं। डैम्प सॉइल होनी चाहिए, ड्राई सॉइल इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। शेडी एनवायरनमेंट में दे कैन यू कैन से फ्लरिश वेरी वेल। ओके, सैंडी सॉइल जो है वो इनके लिए बहुत ही अच्छी सॉइल कंसीडर की जाती है। दे ग्रो और फ्लरिश वेरी प्रॉपर्ली, यू कैन से इन सैंडी सॉइल।
यस बेटे, तो यहाँ पे मैंने आपको सोराई दिखाए हुए हैं। सोराई जो है उसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ये इनके स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अगेन इन द टेरिडोफाइट्स ट्रू रूट्स आर नॉट देयर, ठीक है। कई बार ट्रू रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रखी होती। बिगर टेरिडोफाइट्स जो है दे हैव रूट्स, उनमें रूट्स हैं, पर कुछ जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं उनमें रूट्स की जगह पे क्या प्रेजेंट है, राइजोम इज प्रेजेंट। So what are these rhizomes? These rhizomes are the root-like structure. Or you can say that they may be the preliminary type of roots. Okay, बेटे. Then again, इसमें भी two phases होंगे, gametophytic phase and the sporophytic phase. तो दोनों ही phases जो हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है हमें नजर आती है, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है इसके अंदर स्पोरोफिटिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड फेस उसमें डोमिनेंट था। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, कि इन द टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी दैट इज विजिबल टू योर आईज, ठीक है, इट हैज वेल डेवलप्ड लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, सो इट इज एक्चुअली द स्पोरोफिटिक फेस। तो यू नो दैट कि स्पोरोफिटिक फेस हमेशा कैसा फेस होता है, डिप्लॉइड फेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट है और गैमेटोफिटिक फेस जो है वो कुछ समय के लिए नजर आता है। इस चीज को अच्छे से माइंड में रखेंगे क्योंकि इसी से डिपेंडेंट होगा, इसी से सारा रिलेटेड है लाइफ साइकिल। ओके बेटे, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके अंदर कई बार जो लीव्स होते हैं ना, दे आर वेरी लार्ज साइज ऑफ लीव्स, तो हम उनको फ्रंट भी कहते हैं। दे आर नोन एज फ्रंट्स, दैट इज FRONDS, फ्रंट्स मींस बिगर लीव्स। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगेन अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्स ऑर्गन्स दे आर सपोज टू डेवलप ऑन द गैमेटोफिटिक फेस ओनली। तो देखो स्पोरोफाइट पे कभी सेक्स ऑर्गन नहीं लगते, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेस हमेशा जो है वो वेजिटेटिव फेस को दर्शाता है, और जब वो अपने गैमेटोफिटिक फेस में आएंगे ना तभी उनपे सेक्स ऑर्गन लगेंगे। तो अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सेक्स ऑर्गन्स का यहाँ पे कोई न्यू नेम नहीं है। अगेन द सेक्स ऑर्गन्स आर द एंथीडियम एंड आर्किगोनियम ओनली, ठीक है बेटे। बस एक चीज और आप याद रखेंगे कि इनके जो गैमेटोफाइट होता है वो एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका गैमेटोफाइट एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोथैलस कैसे डेवलप होता है स्पोरोफाइट में से, ये हम कल स्टडी करेंगे। तो आज सभी स्टूडेंट्स जो हैं टेरिडोफाइट्स जो हैं उनके जनरल फीचर्स को स्टडी कर लेंगे, सो दैट it become easy for us to go through the entire life cycle, ठीक है। अपना एक और पीरियड है उसी में हमने टेरिडोफाइट भी कर लेना है। तो आप जो है जनरल फीचर से ही हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स कल, मतलब आज अगले पीरियड में। ओके।